السلام علیکم. مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک MTJ ویڈیوز کو سبسکرائب کریں. شکریہ. بیان میں یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے ماڈرن طبقے کو خوش کرنے کے لیے، کچھ لبرل لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوئی بہت ساری کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے آج کل. کس میں؟ اسلام میں. بہت سی بیسک احکام ہی کو توڑ موڑ کے گڑبڑ کی جا رہی ہے، اور ہماری اسمبلیاں بھی مغربی کلچر کو فروغ دینا چاہتی ہیں. اسمبلیوں میں زیادہ تر لوگ ہی لبرل قسم کے پہنچتے ہیں. ان کا تو اپنا باسوں کا، سب کی بات نہیں کر رہا، بار بار بتا دوں، باسوں کا اپنا کوئی فیملی سسٹم کوئی مضبوط ہوتا نہیں ہے. تو لہذا یہ قانون بنائیں گے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھانا انلیگل ہے، اور 18 سال کا قانون تو بنا دیا. یہ بھی غنیمت ہے کہ 18 سال میں بچی کو شادی کی اجازت ہے، ورنہ ان کا بس چلے تو 50 سال سے پہلے یہ شادی نہیں کرنے دیں. یہ ظلم سمجھتے ہیں بچی کی شادی کو. حالانکہ اسلام بالغ ہونے کے بعد بچی کی شادی کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دیتا ہے. 13 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی شادی کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے. تو اسلام کے خلاف قوانین بن رہے ہیں ہماری اسمبلیوں میں، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش ہے، دینی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، پبلک بھی خاموش ہے. جو ہو رہا ہے ہونے دو. اب 13 سال میں بعض دفعہ بچی قد کاٹ نکال لیتی ہے، وہ دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے. باپ کو یہ خطرات ہوتے ہیں کہ یہ اسکول میں بگڑ سکتی ہے، اس کا بوائے فرینڈ بن سکتا ہے، اس میں جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ مولوی نہیں کہتے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان میں ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اب اگر باپ کو کوئی اچھا رشتہ مل رہا ہو اپنی بیٹی کے لیے، جس کا یہ خیال ہو کہ یہ بچی کو صحیح رکھیں گے، اچھا سسرال ہے، تو پھر باپ کو اور بیٹی کو نکاح نہ کرنے دینا یہ بچی پر کیا ہے؟ ظلم ہے. 18 سال تک بگڑ بھی سکتی ہے وہ. اس بات کا بھی امکان ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن ان لبرل لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بوائے فرینڈ بنائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ غیرت نہیں ہے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو اسلام تو غیرت مند لوگوں کے لیے قوانین بتاتا ہے نا. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اسلام میں 13 سال کی بچی کی شادی نہ صرف جائز بلکہ اس کی ترغیب ہے، بشرطے کہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے. یہ میں اس لیے لگا رہا ہوں، قید کے بچیوں کو ایسے ہی حوالے کر دینا کسی کے سسرال، بعض پورے اسرائیل جیسے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو فلسطینی بنا کے رکھتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر. تو بچی اس ظلم کا تحمل نہیں کر سکتی. تو کوئی اچھا مل جائے تو ہے، لیکن جب مل جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اسمبلیوں سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ نے ان کو ہمارے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہیں دی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اسمبلیوں کو اتنی اجازت نہیں ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے لیے قانون سازی کریں. یہ تو باپ اور بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے. باپ سمجھتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کس عمر میں اس کی شادی ہونی چاہیے، کب نہیں ہونی چاہیے، باپ بیٹی کا معاملہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ظالم باپ بھی تو ہوتے ہیں. تو یاد رکھو، باپ میں ظالم ہونے کا عنصر کم ہے. اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں نا، ان کے ظالم ہونے کا خطرہ زیادہ ہے کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. باپ تو نیچرل ایک سرپرست ہے. مانتا ہوں کہ اس میں کچھ ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، ہر قانون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اسلام نے باپ کو ولی بنایا ہے. کچھ باپ آٹے میں نمک کے برابر ظالم بھی ہوتے ہیں، جو اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بڈھوں سے شادی کر دیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں. تو جہاں ایسا ہو رہا ہے اس پہ یقیناً قانون حرکت میں آنا چاہیے. اور اس پہ بہت فقہا کے فتاوی موجود ہیں کہ کوئی باپ اپنی کم عمر بچی کی شادی اگر کسی بڈھے سے کر دیتا ہے اور پیسوں کی لالچ میں، تو یہ نکاح ہی نہیں منعقد ہوگا، کیونکہ اس میں باپ نے بیٹی کے مفاد کے بجائے کس کا فائدہ دیکھا ہے؟ اپنا فائدہ دیکھا ہے. تو وہ تو قانون پہلے سے بنے ہوئے ہیں. تو لیکن ایک اختیار ہی ختم کر دینا کہ 18 سال سے پہلے بچی شادی، 13 اور 18 میں بڑا فرق ہوتا ہے. 14 15 16 17 18 5 سال بگڑنے کے لیے بہت. اور اس دور میں کہ جب اینڈرائیڈ موبائل ہر ایک کے پاس ہو، فحش ویب سائٹس پر بھی کوئی پابندی نہ ہو، 13 سال کی بچی تو یہ ساری چیزیں دیکھے گی. اسکولوں میں کو ایجوکیشن بھی ہو جہاں لڑکے اس کو چھیڑ رہے ہیں، تو یہ سارے چھیڑ چھاڑ کے اسمبلی میں پہنچے ہوتے ہیں. یہ سارے ٹھڑک پوری، میں پھر کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا، ایک لاٹھی سے سب کو نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اپنا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوتا. اب یہ ہمارا خاندان ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ایسے چلنا ہے، تو ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں نا. ہمیں اسلام پہلے بتا چکا ہے، اور اللہ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں. بہت سے لوگوں نے 13 سال کی بچیوں کی شادیاں کی ہیں، بہت خوش ہیں وہ بچیاں، ان کے گھر بھی آباد ہیں. اب حکومت نے ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کس نے کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کراچی میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی خفیہ ایجنسیاں
नहीं है कि देखें हम जरा भेस बदल के जाएं, देखें कि कौन डकैती कर रहा है, कोई आए हम हमारा भी पर्स छीने तो हम पकड़े। लेकिन इस पे इतना कानून हरकत में आया हुआ है कि तजस्सुस में कि कोई 13-14 साल की बच्ची की शादी करे, हम फौरन क्या करें, उसको पकड़ें। ये सब मगरिब को खुश करने के लिए हो रहा है, इसमें हमारी खैर ख्वाही मकसूद नहीं है। समझते हो, पहले सारी नानी दादियां 13-13 साल में शादियां होती थी, 99 साल तक जिंदा रहती थी वो। कम उम्र बच्ची की शादी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि फायदेमंद है, क्योंकि नेचुरल है ना। बालिग हो गई तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसका जिंदगी में मर्द आना चाहिए, उसकी अपनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, उसकी जहन की, वरना शौहर नहीं मिलेगा तो बॉयफ्रेंड बनाएगी वो, तो वो नेचर है उसकी, उसको बंदा चाहिए। तो शौहर की शक्ल में नहीं दोगे तो गैर। और जिन माओं ने अपनी बच्चियों की शादियों में ताखीर की है ना, वो जो पछताती है वो इनके पास नहीं जाती, वो अदालतों में नहीं जाती हैं, वो बहुत पछताती हैं कि हमें अच्छा रिश्ता मिल रहा था, हमने नहीं किया, आज वो परेशान है। तो ऐसे बहुत से वाकयात हैं। रहा ये कि ससुराल में जुल्म होता है, तो वो जुल्म ससुराल में जो होता है तो वो तो बड़ी उम्र की बच्चियों पर भी होता है। फिर भी हम कहते हैं बाप को अगर ये डर लगता है कि मेरी बच्ची अभी कम उम्र है, जिसका रिश्ता आया है ये इसको बच्चे समझ के बच्चों के तौर पे नहीं रखेंगे, बल्कि इससे वही जिम्मेदारियां डालेंगे जो बड़ी उम्र की औरतों पर होती है, तो फिर ना दो। एक साहब कहने लगे कि आप कम उम्र बच्चियों की शादी की तरगीब देते हैं, तो इस उम्र में रिश्ता कहाँ मिलता है अच्छा जो उसको बच्चों की तरह ससुराल उसको साथ लेके चले। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा रिश्ता ना मिले तो 40 साल में भी शादी मत करो। अगर रिश्ता नहीं मिल रहा अच्छा तो फिर 40 साल में भी ना करो। ये तो सारी शर्तें कब हैं कि उसके मुनासिब मिल जाए। अब लोग कहते हैं कि इसकी गारंटी कौन देगा, तो कि अच्छा है, तो गारंटी तो क़यामत तक कोई किसी की भी नहीं दे सकता। वो तो 40 साल में भी शादी होगी तो गारंटी। ये जो तलाकों के वाकयात हो रहे हैं तो 40-40 साल की उम्र की औरतों की शादियों के हो रहे हैं। इसमें नुकसान ये कि लड़की जितनी देर करोगे ना शादी में, वो उतनी मिचोर हो जाएगी। मिचोर होने की वजह से वो ससुराल में एडजस्ट नहीं होगी और तलाक का रेशो बढ़ेगा। पहले तलाक का रेशो कम था, कम उम्र बच्ची की शादी होती थी, अब तलाक का रेशो बढ़ गया। इतनी मिचोर हो जाती है वो ससुराल में एडजस्ट नहीं होती, वो आंखों में आंखें डाल के बात करती है। तो लिबरल लोगों को इससे कोई गरज नहीं है कि शौहर की आंखों में आंखें डाल के बात को, कहना हमारी वाइफ भी हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करती है, कोई बात नहीं, बेगम तुम्हारी अपनी जिंदगी और मेरी अपनी जिंदगी। तो जब रिश्ता ही नहीं है तो कागज में निकाह नामा होने से थोड़ी निकाह होता है। रिश्ता ही नहीं है, कोई एक दूसरे का ख्याल ही नहीं है, कोई कौन सरपरस्त है, किसकी इताअत करनी है, किसको खुश करना है, किसकी पेशानी में अल्लाह ने जन्नत रखी है। लिबरल लोगों के ये मसाइल नहीं है, इनका मसला पैसा रोकड़ा आना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसलिए इनसे मत पूछ के अपने खानदानों को चलाओ, अल्लाह ने जो हमारे लिए निजाम दिया है। और मैं फिर बात को कंप्लीट करने के लिए कह दूं कि इस्लाम बच्चियों की तालीम के खिलाफ नहीं है। बच्ची की तालीम का खर्चा किस पर है? ससुराल पर, क्योंकि जिसकी वाइफ होगी पढ़ी लिखी तो इज्जत शौहर की है ना। तो शौहर को चाहिए कि बच्ची से शादी करके, यानी खुद भी इतना बुढ़ा ना हो तो शादी करे, और ससुर और सास को चाहिए अपने खर्चे पे अपनी बहू को क्या बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो मर्जी बनाए। रेडीमेड नहीं मिलेगी आपको। जो मेरा बयान सुनती हैं वो रेडीमेड बहू नहीं मिलेगी उनको। आपको बहू अपने खर्चे पे डॉक्टर बनानी पड़ेगी। ससुराल जाके भी सब कुछ हो सकता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा, अभी एक केस आया है सामने, हाँ वो मैं पहले वो वाकया मुकम्मल कर दूं कि इस्लाम इजाजत देता है कि बाप तरबियत के लिए अपने बच्चों को चित्रौल लगा सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जो इस पे पाबंदी की आवाज उठाएगा वो इस्लाम के भी खिलाफ और अपनी औलाद को भी बिगाड़ रहा है। वो तरबियत में जहां मोहब्बत होती है, कभी कहीं ना कहीं सख्ती भी करनी पड़ती है। दुनिया का लॉ है, कानून है। अवाम को तरबियत देने के लिए हुकूमत को इजाजत है ना कोड़ा बरसाने की। थानों में पुलिस मारती है कि नहीं मारती है? आपका बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, आप मोहब्बत से समझाएं बेटा चोरी नहीं करते, फिर भी पकड़ा जा रहा है, चित्रौल लगाएं। इसमें बच्चे का भी फायदा और आपका भी। मैं अपना वाकया सुनाऊं। मेरी बच्ची 6 या 7 साल की थी, कहीं 5 या 10 रुपए पड़े हुए थे, उसने कहीं उठा के अपनी जेब में डाल दिए बगैर परमिशन की। मैंने उसको जिंदगी में शायद 1-2 दफा ही थप्पड़ लगाया होगा, एक थप्पड़ लगाया उसको मैंने खींच। मैंने कहा ये बहुत बुरी हरकत है। देखो चोरी में ना फायदा बहुत होता है। आज उसने 10 रुपए उठाए, कल वो 10,000 भी उठा सकती थी, क्योंकि वो इतना फ्री में एक चीज आ जाती है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये मैं अगर सिर्फ नसीहत करूंगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, खुदा की कसम। किसका बाप का दिल चाहता है अपनी बच्ची पे हाथ उठाए? किसका दिल चाहता है? ना चाहते हुए हाथ उठाया ताकि हमेशा के लिए इसके दिल में इस अमल की नफरत बैठ जाए। और एक को पढ़ाए, मेरे माशाल्लाह 14 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जो साउंड है ना, यानी उसकी जो रूहानी साउंड, वो 13 में डिवाइड हुआ है, बाकी 13 में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाख रुपए रखूं मैं इसके ऊपर,
2 लाख रुपए रखूं, सिक्के पड़े रहे। मुझे ये वाकया हो गया तकरीबन 8-10 साल पुराना, मुझे बल्कि 7-8 साल पुराना वाकया है। मुझे ये गम नहीं है कि कोई टेंशन नहीं है कि मेरा कोई बच्चा पैसे निकाले, पर्स मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं निकालता। ये लाशूर में बच्चे की ये बात बैठ जाती है कि ये अमल बुरा नहीं है बल्कि बहुत बुरा है। ये काम पुलिस नहीं कर सकती, पुलिस तो उस वक्त पकड़ेगी जब ये पक्के चोर बन चुके होंगे। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल। बचपन से ही सारी बुराइयां सीखता है इंसान, अच्छाइयां भी और बुराइयां भी। तभी तो हदीस में आता है नमाजी बनाओ उसको, 10 साल में भी नमाज ना पढ़े उसे मारो। बचपन में होता है सब, अच्छाई भी सीखता है बुराई भी। माँ बाप, हदीस में आता है कि बच्चे सब नेक पैदा होते हैं, माँ बाप उनको यहूदी, ईसाई और मजूसी, आग की पूजा करने वाला बना देते हैं अपनी हरकतों की वजह से। आप बच्चे ने चोरी की, आप कह रहे देखो बेटा एक्चुअली ऐसे नहीं करते। आप बच्चा हो सकता है समझ जाए वो, लेकिन हो सकता है वो कहे मेरे अब्बा से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। इस दफा तो पकड़ा गया, अगली दफा ऐसे करेंगे पकड़े ना जाए। तो बच्चे के लिए एक थप्पड़, हाँ मैं ये कहता हूं कभी मजबूरी में बच्चों पे हाथ उठाओ तो फिर उसकी तलाफी लाजमी करो, क्योंकि जब भी बच्चे पे मार पड़ती है तो बच्चे में शैतान मनफी जज्बात पैदा करता है वालिदैन के खिलाफ। चाहे वो मार सही पड़ी हो, उसकी तलाफी जरूर करें कि एक थप्पड़ अगर लगा दिया है तो जब नॉर्मल हो जाए तो उसको इतनी मोहब्बत दें कि वो कहे कि काश एक के बजाय 2 थप्पड़ पड़ते मुझे। समझ में आ रही है ना बात? क्या आज तो अब्बा ने कुछ इतना ज्यादा इकराम कर दिया कि एक के बजाय दूसरे बच्चे भी आके कहे अब्बा एक हमारे भी लगा दो। इससे क्या होगा कि मार के जो पॉजिटिव, जो मुस्बत फायदे थे वो तो हासिल होंगे, जो मनफी चीजें पैदा हो रही थी, शैतान, वो क्या हो जाएगा? खत्म। बच्चे जो बाप की मार से या मां की मार से बिगड़ते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको मारे तो पिटती हैं, मोहब्बतें नहीं मिलती। हमारे अब्बा ने भी हमें बहुत चित्रौल लगाए अल्हम्दुलिल्लाह, तभी आज हम मिंबर पे बैठे हुए, वरना घंटियां बजा बजा के ही भागते रहते सारे। ये काम भी हमने बचपन में थोड़ा सा किया, घंटी बजा के। तो बचपन में तो सूट करता है ना, चलता है। तो कुछ लड़के लौंडे लपाड़े भाग रहे थे, हमने कहा चलो यार हम भी घंटी बजा के भागते। अब्बा ने देख लिया, ठीक है ना, अब्बा ने लगा दिया चित्रौल के, भाई क्या कर रहे हो यार तुम, मुझे बदनाम करोगे महल्ले में। तो उसके बाद से किसी की घंटी, अब तो जहां घंटी बजानी होती नहीं, मैं जब ड्राइविंग करता हूँ लोग कहते हैं हॉर्न बहुत कम बजाते हो, है ना, नोट किया ना आप लोगों ने? भाई वो याद आ रहा होता है घंटी बजाई थी अब्बा ने, अब घंटी पे मारा था ये पता नहीं किसी और चीज पे, मुझे सही तरह याद नहीं, लेकिन पिटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा से। लेकिन हमारे वाले साहब क्या करते थे, जिस दिन ठुकाई लगाई है उस दिन फिर इतनी मोहब्बत बिठा के, भाई ये कुछ रेवड़ियां निकाल के दे दी, कुछ पैसे दे दिए, भाई ये दुकान से कुछ खरीद लो, कुछ मोहब्बत से, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, देखो हम तुम्हारे खैर ख्वाह, कोई दुश्मन नहीं है। इससे और ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। हाँ, बिगड़ते वो बच्चे हैं, माँ बाप सिर्फ चित्रौल ही लगाते हैं। जब भी अब्बा घर में आएंगे बच्चे समझते हैं चंगेज खान घर में आ गया, अभी नसीहतों के अलावा इनका कोई काम नहीं है। बस ये आगे, ये क्या क्यों रखा हुआ है, ये गिलास यहाँ क्यों रखा हुआ है, तू स्कूल गया था, ये स्टाइल होता है। तो स्कूल आज फिर छुट्टी करके बैठा हुआ है, पटाख पटाख 2 लगाई उसके खींच के, फिर एक ठुड्डा मारा, फिर गालियां भी दे रहे होते हैं। बच्चों को गालियां ना दिया करो, ये बहुत बुरी आदत है। अबे तू क्या कर रहा है, अबे तू उल्लू के पट्टे, ऐसे ही नहीं भाई आप क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे तो तमीज। एक साहब ने मुझे कहा मेरा बच्चा जो है ना तू तड़ाक से बात करता है। मैंने कहा आप अपने बच्चे से तू तड़ाक से करते होगे, वरना ये कहीं और से तो नहीं सीख सकता। ये जो लबो लहजा है ये घर से ही सीख, उर्दू उसने मैंने कहा घर से सीखी है ना, बाहर से थोड़ी सीखी है। तो उर्दू में गालियां भी कहां से सीखेगा वो? अगर आइए बैठिए का लबो लहजा होगा तो बच्चा भी किस तरह बात करेगा? मैंने देखा है बच्चे भी आइए बैठिए खाइए इस तरह, क्योंकि अब्बा उससे इसी तरह से बात करते हैं। हमने उलमा को देखा है, बड़े उलमा को, वो अपने बच्चों से ऐसे बात कर, आइए बेटा, छोटे बच्चों से भी खाइए जाइए। और यहाँ क्या हो रहा है, अबे उल्लू के पट्टे खा ले, तेरे सामने खाना ठंडा हो रहा है, ये हो रहा होता है स्टाइल। खा, ये तेरी नौकरानी नहीं है जो तेरी माँ है जो बना के लाई है, खा। तो ये स्टाइल होता है। तो बच्चे को घर में इज्जत बोलो नहीं मिलती, कहते यार हम तो ऐसे ही पैदा हो गए, पता नहीं क्यों पैदा हो गए इस घर। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं, कह रहे हैं मैं काश किसी और घर में पैदा हो जाता है, ऐसे खुद बच्चे कह रहे होते हैं। मैं कहता हूं कुफ्र है यार, ऐसा मत करो, अल्लाह ने तुम्हारे वालिदैन से बड़ा कोई भी नहीं। कह रहे यार इज्जत ही नहीं है। तो चित्रौल के वक्त चित्रौल, लेकिन परमाया वाले छोड़े, चित्रौल के वक्त क्या लगेंगे? चित्रौल भी लगेंगे। हाँ, लेकिन उसूल ये है कि जो काम मोहब्बत से होता है वो मारपीट से नहीं होता। मारपीट बिल्कुल एक आखिरी दर्जा है, बिल्कुल आखिरी। असल तो मोहब्बत है, मोहब्बत से सुधर जाए उसको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन नहीं होता भाई, सारे थोड़ी मोहब्बत से सुधरते हैं। हम नहीं सुधरे जो यहाँ बैठ के तेरी हमारे अब्बा ने लगाया, हम तो ट्यूशन की छुट्टियां मारते थे रोजाना, तो अब्बा ने पाइप लेके धुनाई लगाई। अब्बा तो मेरे लिए एक दफा स्पेशल दरख्त से डंडी तोड़ के लाए थे,
कह रहे हैं कि जब पिटाई का टाइम आता है कोई डंडा नहीं मिल रहा होता, लेकिन हमें यह सिखाया गया था कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसे है जैसे खेती के लिए पानी। स्कूलों में भी ये सुनते थे, हमारे टीचर भी कहते थे भाई बाप की मार से ऐसे पौधे उगते हैं, फूल और बूटे, ऐसे फूल पैदा होते हैं जैसे जमीन में फूल पैदा होते हैं ना पानी के जरिए, ऐसे माँ बाप की। हम स्कूलों में ये सुनते थे टीचरों से। अगर टीचर ने हम पे कभी हाथ उठाया, हम अपने वालिदैन को आके शिकायत करते कि आज हमारे टीचर ने हमें मारा है, तो हमारे वालिदैन हमें ये नसीहत करते थे कि जो बच्चा टीचर की मार बर्दाश्त करता है और टीचर के सामने जबान नहीं चलाता, अल्लाह उसी को इल्म की दौलत देते हैं। और ये माँ बाप से हम सुनते थे कि इल्म अदब के बगैर, भाइयों से भी ये सुनते थे माँ बाप। मैंने एक दफा अपने भाई के सामने टीचर की शिकायत की, मेरे भाई ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, आंखें दिखाई मुझे शर्म नहीं आती अपने टीचर की आगे बुराई कर रहे हो मेरे सामने। आज दोनों को बागी बनाया जा रहा है, स्कूलों में बताया जा रहा है कि बेटा माँ बाप सख्ती तो नहीं करते, पूछते हैं, हाथ तो नहीं उठाते। और अगर किसी टीचर ने बच्चे पे हाथ उठाया, अब्बा उस टीचर से लड़ने के लिए स्कूल पहुंच जाएगा। यहां कारी साहब बैठे हुए हैं जो मगरिब के बाद बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, इनसे मैंने कहा हुआ है कि मैं मस्जिद का इमाम हूं, मेरे बच्चों के साथ आपने वही सलूक करना है जो दूसरे बच्चों के साथ। ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि ये मुफ्ती तारिक मसूद के बच्चे हैं तो इन पे हाथ नहीं उठेगा। मैंने कहा इसका मतलब आप इन बच्चों को फिरौन बना रहे हो। इनको क्या बना रहे हो? अगर आप दूसरे बच्चों पे हाथ उठाते हो, सबक याद नहीं, उनको मारते हो, तो आपको ये सलूक मेरे बच्चे के साथ भी, वरना बच्चा देखेगा वो तो पिट रहा है, मैं नहीं पिट रहा, क्यों कि मैं मुफ्ती तारिक मसूद का बेटा हूं। इससे बच्चा क्या होगा? तरबियत होगी, बोलो ना, वो फिरौन बनेगा, उसमें तकब्बुर पैदा होगा कि हम कोई अलग मखलूक हैं। उनको सख्ती से बोला हुआ है मैंने। हाँ, बेतहाशा मारपीट की इजाजत, कैसा ना कि जानवरों के, वो कैमरे तो हर जगह लगे हुए हैं, मस्जिद में भी लगे हुए हैं, मैं देखता नहीं हूं कि कारी साहब मार रहे हैं कि नहीं मार रहे। कारी साहब डर जाएंगे, अच्छा कैमरे देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक उसूल की बात है कि एतदाल, ये ना हो कि पकड़ के, उससे तो बच्चे बिगड़ते हैं और बदअखलाक बनते हैं। तो कहीं जरूरत है, सबक याद नहीं कर रहा, बिला वजह छुट्टियां कर रहा है, तो वही इजाजत है। टीचरों को भी बोला हुआ है और घर में बच्चों को सिखाया हुआ है कि टीचर की शिकायत मेरे सामने नहीं होगी। अब सवाल पैदा होता है, बास टीचर तो बड़े जालिम भी होते हैं, जब बच्चा घर में आके बताएगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आप वैसे इंक्वायरी करें उससे। अगर बच्चे ने आके बताया अब्बू टीचर बहुत मारते हैं, जुल्म करते हैं, तो आप बच्चे के सामने मत बोलो। बच्चे को ये बोलो नहीं नहीं बेटा टीचर का तो हक है, तरबियत होती है, इल्म तो अदब से आता है, अलग से फिर इंक्वायरी करो उसकी। समझ में आ रही है बात कि यार कोई जरूरत से ज्यादा तो नहीं हिसाब किताब खराब हो रहा, क्योंकि ये तो जुल्म भी है ना बच्चे के ऊपर, क्यों, वो भी तो इंसान है और इससे तरबियत के बजाय बच्चा बिगड़ता भी है। तो मार्केट में ये चीजें क्या हो रही हैं, शॉर्ट, अपने बच्चों के लिए उसूल कुछ और होते हैं। यहाँ बाज दफा कोई बच्चे शरारती करते हैं, कोई नमाजी थोड़ी सख्ती करता है, तो बाप लड़ने के लिए आ जाता है। भाई किसी बूढ़े ने तुम्हारे बच्चे पे अगर हाथ उठा लिया तो बच्चे को बोलो बेटा ये भी तुम्हारे बाप की तरह है, सफेद रीश है, इसने थोड़ा डांट दिया, हाथ उठा लिया, बेटा ये बाप की जगह है, इसकी शिकायतें लेके मत आओ मेरे पास। तो अदब नहीं है, तभी बस हिसाब क्या चल रहा है आप देखो। तो वो मैं बता रहा था कि वो यूरोप में थे हमारे एक हजरत के जानने वाले, तो ये अब्बा का असल में वालिदैन का तस्करा आता है ना, तो मैं थोड़ा सा बहुत कोशिश करता हूं जज्बात पे कंट्रोल करने की। जो जज्बात बनते हैं वो मैं लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। इंसान जो कुछ होता है ना, उसमें सबसे पहला दखल किसका होता है? सबसे पहला दखल किसका है? वालिदैन का। तो जो कुछ भी इंसान को कुछ अगर इज्जत मिले, कुछ अमल की तौफीक मिले, कुछ मुआशी लिहाज से अगर कुछ खाने को रोटी मिल रही है, तो ये सब चीजों में किसका दखल है? आज लोग जो हमारी यंग जनरेशन है, इनको वालिदैन की हुकूक नहीं बताए जा रहे, इनको बस ये बताया जा रहा है। यूरोप में तो बहुत ही बिगाड़ा जा रहा है कि अब्बा ने तेज आंखों से क्यों देखा, अब्बा ने हाथ क्यों उठाया। मैं कहता हूँ मजे लो, लोग मुझे कहते हैं हमारी औलाद बिगड़ रही है, मैं कहता हूँ मजे लो वहां रहने के। तो एक साहब गए वहां रहने के लिए ना, बहुत मना किया हमारे हजरत ने भी कि भाई वहां जाओ, जॉब करो, फैमिली को वहां न रखो। सारी फैमिलियां की बात नहीं कर रहा, कुछ बिगड़ जाते हैं। तो वहां वो गए हैं, 6 महीने बाद भाग आए। हमारे हजरत को उन्होंने बताया कि हजरत मैं 6 महीने वहां रहा हूं, 6 महीने में एक दफा बैठ के पेशाब करने की तौफीक, बोलो भाई, नहीं मिली। बच्चे इंतहाई बिगड़ गए थे। एक दिन मैंने अपने छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा,
میں نے کہا چلو ہم نے بھی ابا سے مارے کھائی ہیں تو ایک آدھ تھپڑ اگر بچے کو لگ گیا تو تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی, اٹھا کے اندر. اب باپ کے کیا جذبات ہوں گے یار, بیٹا اگر آپ کو تھانے بھجوا دے, کہہ رہا میں دانت پیس رہا ہوں کہ میں یہاں سے چھوٹوں گا تو میں اس کی چترول لگاؤں گا, مجھے اس نے تھانے بھجوا دیا. کہہ رہے میں جب آیا تو میں نے بچے کو ذرا آنکھیں دکھائی, میں نے کہا مجھے تھانے بھجوائے, تو فوراً فون کی طرف اشارہ کرتا ہے. کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ فون. یہ ہے ہیومن رائٹس, اٹ از کالڈ ہیومن رائٹس. تبھی تو لوگ وہاں بچے نہیں پیدا کرتے کہ ہمارا ہی باپ بنے گا. پھر میں بتا رہا ہوں ساری فیملی ایک جیسی نہیں ہوتی. کہیں آپ کہیں کہ اچھا اپنے خالہ کو فون کر کے کریں, اچھا تو ہمیں پتا ہے تمہارے بچے تو بہت سے یہاں سے زیادہ اچھے ہیں, ایسے بچے بھی ہیں, لیکن وہ ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں. کہتے میں نے کہا یار یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہو گیا, میری سال ہم نے جانا ہے اور سلوک ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے جیسے اس نے ہمیں جانا ہے. بیگم صاحبہ بھی ماڈرن ہو گئی, ان کو بھی اب کچھ نہیں کہہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب یہاں سے نکلو پاکستان جاؤ, بچوں کو اور بیوی کو یہاں نہیں رکھوں گا, لیکن پاکستان اگر ان کو بتا کے لے کے جاتا تو یہ رپورٹ کرا دیتے ہم ایک پسماندہ ملک میں لے کے جا رہے ہیں جہاں گٹر ابل رہے ہیں, تو کسی کا باپ بھی پھر نہیں لے جا سکتا. میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں دادا دربار گھما کے لاتا ہوں, وزٹنگ ویزے پہ ہم جا رہے ہیں پاکستان. بیگم کو بھی یہ سمجھایا کیونکہ بیگم بھی آنکھیں نکال رہی تھی بہت زیادہ, کوئی بات ہی نہیں مان کے دے رہی, بچے بھی بگڑ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہم نے پھر کیا کیا, اپنے غصے پہ قابو کیا. ابھی شکر ہے نیشنلٹی نہیں ملی تھی ان کو وہاں کی, ورنہ تو وہاں حکومت یہاں سے انڈا موڑ سے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاتی کہ ہمارے بچے تم کیوں پال رہے ہو. تو کہہ رہے ہیں میں نے نیشنلٹی ملنے سے پہلے ویزا تو ان کا وزٹنگ کی ضرورت نہیں تھی ان کو, پاکستان آیا تفریح کے لیے گھمانے پھرانے لے آ رہا ہوں. یہاں آ کے ایئرپورٹ پہ ہی چترول لگانے شروع کر دیے میں نے. بچہ کہہ رہا ہے کیوں مار رہے ہو, کہہ رہے ویسے ہی مار رہا ہوں, ٹھرک ہے اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ پتا چلے کہ میں تیرا کیا ہوں, باپ تو یہ باپ ہونے کا بھی تو ثابت کرنا ہے نا. اور میں نے کہا بلا پولیس کو. قانون تو ہے کہ پولیس انوالو ہوگی, لیکن اللہ کا شکر ہے پولیس والوں میں غیرت ہے, وہ اس کال پہ آتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کل ہمارا بچہ بھی ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا. یہ پولیس والوں کو یہ بیان کسی طرح پہنچا دو کہ پولیس والا باپ کو اریسٹ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر آج میں اس بچے کی وجہ سے باپ کو میں جیل میں بھیجوں گا تو کل میرا بچہ بھی مجھے جیل بھجوا سکتا ہے. اس میں یہ غیرت ہے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں بچے پولیس کو بلاتے ہیں پولیس آتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پولیس والوں میں اللہ کا شکر اتنی غیرت ہے. ہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہے, زیادہ کیا تھوڑا بھی ظلم اگر ہو رہا ہے, یہ تو ظلم نہیں ہے نا. اگر بہت بے تحاشا بلا وجہ مار پیٹ ہو رہی ہے پھر تو پولیس کو بھی انوالو ہونا چاہیے. چاہے شوہر اگر بیوی کو مار رہا ہو, خام خامے پیٹ رہا ہے اس کو, یا اولاد کو مار رہا ہے, تو غلط ہے نا, غلط کو تھوڑی ہم کہیں.